पूछे ये ज़मीं कौन है बता, ये जादुई परी. Thank you so much. I hope this really goes well with people. I think my parents spotted that inclination of mine. Practice कर रहा हूँ मगर मेरे I'm actually tearing up because I don't want to do it, हाँ. but I have to do it. Very ashamed in saying that कि मैं किसी एक तरीके का रियाज मैं फॉलो नहीं कर पाता. और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पहले फिल्मों में नहीं करते थे, मगर आज फिल्म प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग सॉन्ग्स. Yeah. उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें हाँ. कोई शर्म नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज Yeah. वो जो एक्सेस है to the right kind of people, to the right kind of mentors who can guide you in the right way, बहुत कम लोगों को नसीब होता है. हाय, मैं हूँ राज पंडित and you're watching me on punjabkesari.com. Today we have someone with us who is making the right kind of buzz with his music. Well, वो आ रहे हैं with his film Tanvi, and he is making all the right noises, and I think we can just be very happy to have him with us so that we can talk a lot more about his future projects, उनके जो upcoming films है, उनके solo albums है, उनके बारे में बात करेंगे. Well, he's none other than Raj Pandit. He is a singer, performer, and he has been a child actor. He's also considered a child prodigy. Well, hailing from Kashmir and also from a filmy background. His mother is a noted singer, father a noted filmmaker. I think you have seen best of both worlds. Absolutely. है ना? हाँ. So I think we will, the whole interview we can start with that setting in mind. Sure. And let's draw the parallel of how you feel to be a part of the industry, as well as you have also experienced something in the real world जो भी हुआ है आप लोगों के साथ, जो भी मतलब connected to Kashmiris and all. So yeah, so let's start with it. But because music is your first love, if I'm not wrong, it's your first passion, है ना? तो उसके बारे में जानते हैं कि how did it start? Like how did this passion develop as a child? Growing up, like you said, my mother is a Kashmiri folk singer. Yeah. नीरजा पंडित. Yeah. तो मैं उनके आसपास हमेशा मेरे आसपास म्यूज़िक रहा है एज अ वेरी यंग किड. और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे दोज यूज्ड टू बी माय टॉयज एट वन पॉइंट. Okay. तो आई थिंक माय पेरेंट्स स्पॉटेड दैट इंक्लिनेशन ऑफ माइंड कि Obviously. इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है और इसको देयर इज अ रिदमिक सेंस दैट ही इज शोइंग एट सच अ यंग एज. मैं 2-2.5 साल का था. आई यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स. Oh, what kind of instruments mostly? तो हमारी कश्मीरी जो वेडिंग्स होती है उसमें जो म्यूजिकल नाइट होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मेहंदी रात जो होती है, Okay. तो वहाँ पर हम एक सारे जो फैमिली होती है वो एक ग्रुप में बैठकर भी सिंग आर फोक सॉन्ग्स. और जो रिदम इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तुमक नारी बोलते हैं. तो इट्स कॉल्ड तुमक नारी. तो वो सब उसको एक गोद में लेकर इट्स लाइक अ इंस्ट्रूमेंट, रिदम इंस्ट्रूमेंट, जो सब हमारे मेरी जो आंट्स हैं, जो अंकल्स हैं, जो सीनियर्स हैं फैमिली के, वो बजाते थे और गाना गाना बजाना होता था. So at one of my family weddings, I was probably 2.5 years old. I saw that instrument and I started, playing that. Obviously not हाँ, properly, but yeah. like, वो एक इंटरेस्ट जो दिखता है, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरी मॉम ने वो स्पॉट किया कि इसको इंटरेस्ट तो है. मतलब मुझे ये सब याद नहीं, बट उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ पर वी स्पॉटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. और सो दे थॉट कि द फर्स्ट आई थिंक इंस्ट्रूमेंट दैट आई शुड लर्न इज तबला. तो वो मेरा एक फाउंडेशन बना इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का. आई स्टार्टेड फॉर्मली लर्निंग एट द एज ऑफ 4. कुछ साल मैंने सीखा. फिर growing up, then I eventually went to Ustad Lal Khan Sahab's Institute, which is Ustad Zakir Hussain Institute in Mumbai. वहाँ मैंने 2-3 साल तबला की ट्रेनिंग ली. और simultaneously I was also learning singing. I was also learning piano, which is Western classical. तो एक जो बेस जो फाउंडेशन बननी थी musically, I was very lucky to have all sides at a very young age. Very young. Thankfully. So that's how it started, and I started getting into producing music. I met so many amazing people along the way because मैं अपनी मॉम के साथ उनकी रिकॉर्डिंग्स में I used to accompany her. Because I used to love going to studios and watching the recording, and वो जो दुनिया थी मुझे बहुत फैसिनेट करती थी as a child. कि जो टेक्नोलॉजी पार्ट है उसका, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, माइक्रोफोन कैसे प्लेस किया जाता है, वो कौन से बटन से आप रिकॉर्ड दबा रहे हैं, कौन से बटन से प्ले पॉज हो रहा है. आई यूज्ड टू ऑब्जर्व ऑल ऑफ दैट व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर रिकॉर्डिंग्स. एंड
I met so many lovely people along the way, and you know they guided me into getting into music production. तो नदीम श्रवण का उनका एक गाना था, शी वाज सिंगिंग फॉर देम. आई रिमेंबर बैक इन 2000 आई थिंक 2-3 की बात है शायद ये. और तब तक मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया था, मैं बस तबला सीखता था और गाता था. एंड उनके जो चीफ असिस्टेंट थे उस वक्त, तौसीफ अख्तर, ही इज़ अ वेरी वेल नोन कंपोजर एंड अ गज़ल सिंगर टुडे. ही यूज्ड टू असिस्ट नदीम श्रवण एट द टाइम, एंड वो रिहर्सल करा रहे थे मॉम से. अच्छा. मॉम के साथ गाना सिखा रहे थे उनको, रिहर्सिंग द सॉन्ग. और मैं बगल में बैठा था, तो वहाँ पर एक ऐसे एक टेबल पड़ा हुआ था. तो जब वो गाना गा रहे थे, आई जस्ट वेरी नेचुरली स्टार्टेड यू नो प्लेइंग ऑन द Tapping, टेबल. हाँ, okay. बजाने लगा. तो ही गॉट वेरी एक्साइटेड कि अरे यार ये छोटा सा बच्चा ये बड़ा यू नो टेम्पो में बजा रहा है और उसको समझ है म्यूजिक की, बड़ी अच्छी बात है. ही वाज वेरी हैप्पी. But that time you were already learning tabla and हाँ, I was learning हाँ, tabla. I yeah, used yeah, to yeah. play. I was about, I So think, you 7, had 8 that years sense, old. हाँ, yeah. हाँ, 7-8 साल का था मैं. So then I got connected to him, and then he because he was into music production, he would do background scores, he would do arrangements. So then he guided me to start learning piano as well, ताकि वो western classical influence भी जो training होती है, formal training, you start notation music आपको पढ़ना आना चाहिए if you want to become a composer correct, or a singer. वो music theory बहुत ज़रूरी है जानना. And then he also eventually got me into music production. तो उनसे मैं कुछ बेसिक्स मैं सीखता था, फिर मैं खुद जाके अपने आप ट्राई करता था. आई टू मेक ट्रैक्स एंड देन आई टू प्ले इट टू हिम एंड देन ही वुड गिव मी फीडबैक. और साथ साथ में स्कूलिंग भी चल रही थी. सो आई वाज वेरी लकी थ्रू माय पेरेंट्स आई कुड मीट द राइट पीपल हु वुड गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन विद माय म्यूजिक. और So you agree, मतलब आप मतलब ये तो है कि सी फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि स्पेशली म्यूजिक ट्रेनिंग की अगर बात करें तो वो बहुत बचपन से इफ द चाइल्ड शोज इंटरेस्ट तो मॉम डैड उनको एनरोल कर ही देते हैं, विच इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि आप जितने बचपन से सीखोगे इट्स ईजियर फॉर यू. लेकिन कैसा होता है, जैसा आपने मेंशन किया अभी, बिकॉज योर पेरेंट्स बिलोंग टू द इंडस्ट्री, उनको एटलीस्ट एक आइडिया था कि how you can start working also at the same time. Absolutely. Along with learning it. Yeah. तो वो एक upper hand आपको लगता है आपको मिला है. 100%. Yeah. उसमें कोई दो राय नहीं, हाँ. कोई शर्म नहीं है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, because Yeah. वो जो एक्सेस है to the right kind of people, to the right kind of mentors who can guide you in the right way, बहुत कम लोगों को नसीब होता है. Exactly. And even today when I have the musicians that I work with, not everyone belongs to the Yeah. industry. Yeah. Not everyone is from Exactly. हाँ. तो बहुत से लोग बाहर के दूसरे शहरों से आते हैं एंड स्टिल मेक इट बिग. तो वो एक अपर हैंड तो डेफिनेटली है. मगर वी वर ऑलवेज टॉट बाय आवर पेरेंट्स दैट बोथ मी एंड माय सिस्टर दैट इस चीज़ को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. यू कांट टेक इट लाइटली. यू हैव टू यूटिलाइज दिस प्रिविलेज एंड दिस एक्सेस टू पीपल इन द बेस्ट वे पॉसिबल. Exactly. आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको असिस्ट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इवन इन माई एक्सटेंडेड फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई फादर देयर इज नो वन इन द इंडस्ट्री. Okay. So he made his Own. spot in the industry on his own. Yeah. True. My grandfather was a banker, very humble background. So his connection and his goodwill that he's built over the years, he wanted to, give that as an access to us, his kids. And we were always told कि अगर ज़रा भी you slack behind or you take it lightly or we see you not taking it seriously, then we also have the access to shut it down for you. Yeah. तो आपको ये जो म्यूजिक है इसको एक it's a full time commitment. It requires a lot of patience. It requires a lot of hard work. Because they've been through the drill. They knew that Yeah. कि ये problems आपके सामने आएंगी. तो आपको तैयार रहना है उसके लिए. So that means your parents are like, they have given you a reality check also. 100%. हाँ. Absolutely. कि मतलब ऐसा मत समझो कि हम हैं तो you just take it for granted. Yeah, बिल्कुल भी. हाँ. वो feeling बिल्कुल भी नहीं थी because that reality check kept coming every day. Yeah. तो And that's important. Absolutely. Yeah. वो discipline शुरू से ही चाहे वो when I was learning तबला, मैं जो daily रियाज का 30 minutes होता था, my mom would make sure I do that. Yeah. भले मेरा मन ना हो, as a kid you want to go out play cricket. I couldn't play cricket because अगर finger में कोई injury होगी फिर आप तबला नहीं बजा सकते. हाँ. आप practice नहीं कर सकते. So I had to So many sacrifices also come as a along child, with. yes, Yeah, as a absolutely, child. हाँ. absolutely. Yeah. But those are all I did it from all my heart. Yeah. But उस बचपन में कभी-कभार some days you feel यार मैं
मुझे आज नहीं है मन प्रैक्टिस करने का, मुझे नहीं आज रियाज करना है, मुझे आज खेलना है, बट वो डिसिप्लिन जो है, हाँ दे वर ऑलवेज वेरी ऑन आवर हेड्स कि नहीं, आपका 30 मिनट्स है तो है, भले आप फिर के आपके आंसू भी आ रहे हो। बहुत सारे ऐसे दिन होते थे कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मगर मेरे आई एम एक्चुअली टीयरिंग अप बिकॉज आई डोंट वांट टू डू इट, हाँ बट आई हैव टू डू इट. या So that grind is very important, and that was drilled in us drilled in me very early on. हाँ और वो जो इनिशियल इयर्स थे वो आई थिंक आज जाकर हाँ। काम आते हैं. बट अभी भी आप मतलब आप डेली बेसिस पे रियाज तो करते ही होंगे, मतलब नाउ दैट यू आर आल्सो वर्किंग प्रोफेशनली, बट रियाज फिर भी आपकी मतलब कि बरकरार है एवरी सिंगल डे, सो उसके बारे में कुछ बताएं, लाइक हाउ लॉन्ग, और डू यू डू योर रियाज विथ योर मॉम और कुछ ऐसा? और मेरा एक्चुअली देयर इज अनफॉर्चुनेटली नो सेट प्रोटोकॉल. आई वांट टू डेवलप इट. आई एम वेरी अशेम्ड इन सेइंग दैट कि मैं किसी एक तरीके का रियाज मैं फॉलो नहीं कर पाता, मगर थ्रू वर्क, थ्रू रिकॉर्डिंग्स, थ्रू सेशंस, आई ट्राई एंड सिंग एवरी डे. चाहे वो किसी एक तरह का गाना हो, चाहे वो एक ही गाने को बार बार गाना हो, चाहे वो कोई एक किसी गाने में एक सरगम है जो मुझे बहुत पसंद है, या किसी गाने में कोई एक पार्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई वांट टू ट्राई एंड अटेम्प्ट टू सिंग इट, और फिर मैं उसी को गाता रहूँ ऑन रिपीट. और फिर जब वो क्रैक हो जाए तो देन आई फील लाइक ओके आई हैव क्रैक्ड इट, एंड देन ऑन टू द नेक्स्ट, एंड ट्राई एंड लिसन टू एज मच म्यूजिक एज आई कैन. जो आज जितना एक्सेस आज है म्यूजिक का, पूरी दुनिया का म्यूजिक आप एक्सेस कर सकते हो, या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. हाँ, यू गेट टू लर्न एवरी डे. एवरी डे, या और हम जब स्टूडियो में भी जब म्यूजिक बनता है, आई एम वर्किंग विद सलीम एंड सलमान सर इन स्टूडियो एंड वी आर मेकिंग सॉन्ग्स, आई ऑलवेज एंड अप जो उसका स्क्रैच वोकल जो होता है जब हम कंपोज कर रहे होते थे, तो वो मुझको ही कहते हैं कि यार आज तू यू शुड सिंग दिस जस्ट एज अ गाइड बिकॉज आई वांट यू टू सिंग इट. तो हर गाना जो सलीम सुलेमान के यहाँ से निकल के आता है वो इनिशियली मैं गा देता हूँ एज अ गाइड. okay. तो दैट बिकम्स अ ग्रेट प्रैक्टिस फॉर मी बिकॉज अलग अलग तरह के गाने होते हैं, और हमको पता है कि ये गाना हम लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सोनू जी गाएंगे, या ये गाना जो है ये श्रेया और सुनिधि के लिए हमने बनाया है, जो हम प्रोजेक्ट करते हैं हर साल भूमि विच दे डू. इतने अलग जॉनर्स के गाने बनते हैं और मुझे वो जॉनर्स गाने का मौका मिलता है. और ऐसा भी नहीं कि आपको सुना हुआ गाना आप गा रहे हैं या रेप्लिकेट कर रहे हैं. इट्स अ ब्रांड न्यू थिंग. या आपने अभी सुनी है, आपको उसको सीख के आपको इंटरप्रेट करना है एज अ सिंगर, कि इसमें क्या क्या आप इमोशन डाल सकते हो, क्या फीलिंग ला सकते हो, कैसे इसको गाया जा सकता है. सो वो सब जो प्रैक्टिस है दैट हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस फॉर मी इन द स्टूडियो. सो दैट आई एम वेरी लकी दैट आई गेट टू डू दैट. और फिर जब व्हेन अ सिंगर लाइक सोनू जी और अरिजीत और श्रेया मैम व्हेन दे कम इनटू द स्टूडियो एंड देन दे सिंग दैट पार्ट एंड व्हेन दे प्रेज यू कि यार you sung this so beautifully, I don't want to add anything more to it, or all these people are very generous and kind with their words. तो उनका जब अप्रूवल एक मिल जाता है तो उससे फिर और हौसला मिलता है. that's lot of motivation. It becomes very inspirational, so then वो भी एक तरह का मेरे ख्याल से रियाज है, and I think that practice I try and do as much as I can. सो क्योंकि अभी कैसे है कि अभी 90s की जो इंडस्ट्री थी या अर्ली 2000s की, इट वाज लिटिल डिफरेंट इवन व्हेन इट केम टू एक्टर्स एंड सिंगर्स, तो बहुत अलग तरीके से काम होता था. अभी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इंटरवेंशन हो या लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, थिंग्स हैव चेंज्ड. कुछ चीज़ें फास्ट भी हुई है, अच्छी हुई है, कुछ ख़राब भी हुई है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल टाउन जो टैलेंट्स है, लाइक सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर देम, और ऐसा भी हो रहा है कि थ्रू सोशल मीडिया दे आर गेटिंग रिकॉग्निशन इन द इंडस्ट्री, और वैसे भी उनको काम मिल रहा है. तो हाउ डिफ़िकल्ट और ईजी डू यू थिंक, क्योंकि उस टाइम पे भी मान लीजिए अगर कोई टैलेंट होता भी था, लेकिन सोशल मीडिया जैसी चीज़ें नहीं होती थी और हर किसी के पास कॉन्टैक्ट्स नहीं होते थे. लेकिन अभी कैसे, इवन इफ़ यू आर लाइक एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर बट यू आर टैलेंटेड, you can still put videos and you can still be recognized. That's the power now. लेकिन आपको लगता है कि आर दोज काइंड ऑफ पीपल जिनको अभी सोशल मीडिया में जो सेंसेशन है, सिंगर्स, दे आर गेटिंग देयर ड्यू इन द मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री? Why not? I think it's a great time. बहुत ही empowering बट time है. आर दे डूइंग इट, या उनके लिए अभी भी बस सोशल मीडिया तक ही सीमित है कि लाइक सोशल मीडिया में तो प्रेस कर रहे हैं लोग, उनको बहुत वाहवाही मिल रही है, मे बी दे हैव बिकम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, उनके थ्रू वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम जैसे प्लेबैक हो गया किसी मूवी में या कुछ ऐसा, उधर तक वो पहुंच पा रहे हैं या नहीं पा रहे, या अभी भी वो बहुत ज़्यादा? I think that's a choice that you make as an artist.
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ सोशल मीडिया और अपने कंटेंट क्रिएशन ही करना है, हाँ उनको उनके एस्पिरेशंस नहीं है शायद, जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स जो एक्टिंग में अब ट्रांसलेट हो गए, ट्रांसफर हो गए, डन वेब सीरीज एंड फिल्म्स या एंड बिग प्रोजेक्ट्स, दैट इज बिकॉज दे चोज टू, या उनका वो हमेशा से सपना But there's also a slight upper hand they get from people, like who are just auditioning or who are just, like कि मुझे एक scope चाहिए. Like music industry में भी ऐसा होता होगा. They go to music labels and they're like, I have this composition. Can you just hear me out? क्योंकि वो 90s 2000s में ऐसा होता था. Right. तो they're still not taking the route of social media. तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा journey तो difficult है आज भी. But बट वही है ना कि आपको सोशल मीडिया का एक्सेस तो हर एक के पास है, तो अगर So you feel कि अगर है आप में talent, you should utilize so that you can come into focus. इट्स अ ग्रेट टाइम, बिकॉज आज के टाइम में आपको किसी बड़े स्टूडियो की भी जरूरत नहीं है टू रिकॉर्ड अ सॉन्ग, टुडेस टाइम इट्स बिकम सो इजी, इट कैन जस्ट बी अ रॉ वीडियो ऑन योर फोन, परफॉर्म योर म्यूजिक और यू सिंग, और इवन एक्टिंग वाइज इट्स बिकम सो इजी टू रीच पीपल, Yeah. और उसमें से क्या वर्क करे क्या नहीं वो तो अब नसीब के ऊपर है, एवरीथिंग हैज इट्स ओन डेस्टिनी, बट जितना एक्सेस कंटेंट क्रिएटर्स को है उतना ही जो किसी- कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बने नहीं उनको भी है. है So exactly. it's a choice you have to make, and if you want to reach people directly, it's totally in your hands. हाँ. There's nobody controlling it, luckily. But people in the industry are welcoming. That's what I'm asking. Are they welcoming to any sort of new talent? Absolutely, बिल्कुल. और इज इट ऑलवेज दैट ओल्ड वे आउट कि जैसे हम लोग नेपोटिज्म का भी डिबेट करते थे, क्योंकि जिनके घर वालों को आप जानते हो कंफर्टेबिलिटी फैक्टर आ जाती है बहुत टाइम, ऑल्सो एट टाइम्स लीनिएज वाली फैक्टर आ जाती है, विच आई एम नॉट सेइंग इज रॉन्ग, लेकिन इट माइट हिंडर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन पीपल हु आर एक्चुअली टैलेंटेड. तो अगर उनको स्कोप ना मिले तो that's a reality too. हाँ. वो भी एक सच्चाई है. बहुत सारी इंस्टेंसेस में ऐसा होता भी होगा शायद, Hmm. मगर that can't go that far. या मतलब if you are not skilled enough, or if you are not या दैट इज ट्रू talented अगेन. enough, it's या not going to या reach दैट beyond a point. या ट्रू. तो मेरे ख्याल से जो टूल है ऑफ इंटरनेट, ऑफ सोशल मीडिया, यू शुड यूटिलाइज इट एंड मैक्सिमाइज इट एज मच एज यू कैन, हाँ बिकॉज इट गिव्स यू द पावर टू रीच पीपल डायरेक्टली. हाँ करेक्ट फिर अगर आपका कोई एक चीज़ वायरल हो गई या ट्रेंडिंग हो गई, तो फिर जो द बिग लेबल्स और द फिल्म के जो लोग हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, दे टेक नोटिस ऑफ इट, Yeah, एंड इफ यू आर yeah. रियली टैलेंटेड एंड स्किलफुल, Then- दे विल कम टू. Yeah. सब ये जो सोनू निगम जी का एक गाना है पुराना टी सीरीज का, जो भी सडनली बहुत वायरल हुआ बिकॉज ऑफ राजू कलाकार. Yeah, true, yeah. It became like a trend. Yeah, it's fun. viral, People हाँ. are watching it, they're loving it. And T Series, in fact, as a label, they invited him to Bombay. Yeah. They shot a new music video with him, and with 3 more content creators, Yeah. who are on Instagram, very big comic content creators. So it's a great time. I think the mainstream producers and labels are also recognizing talent which is coming through through social media and through the internet. So उसका तो फायदा आई थिंक हर एक को मिलना चाहिए. और एक टाइम पे जैसे अर्ली 2000s पे ना विद रियलिटी शोज लाइक इंडियन आइडल एंड एवरीथिंग वी हैव फाउंड जेम्स लाइक जुबिन नौटियाल, अरिजीत सिंह, एंड दे आर लाइक सम ऑफ द टॉप names in the industry now and totally made their own name. और यहाँ तक कि अभी वो ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा recognized है, ऐसा नहीं कि अभी इवन सुनिधि चौहान फॉर दैट मैटर उसी टाइम पे दे हैड कम थ्रू सारेगामा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ शोज. लेकिन अभी बहुत लोग बोलते हैं कि यार मतलब इवन तो देर आर गुड सिंगर्स नाउ इन दोज शोज ऑल्सो, दे आर फैब्यूलस, लेकिन कैसा है क्योंकि अभी इतना बढ़ गया है तो नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स ज़्यादा है एंड बहुत लोग बोलते हैं इट्स स्टेज्ड ऑल्सो समटाइम्स. तो व्हाट डू यू हैव टू टेल अबाउट द रियलिटी ऑफ रियलिटी शोज? आपको क्या लगता है? From what I know, I think उसका जो वोटिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, I have no idea. हाँ. कितना रियल है कितना नहीं, बिकॉज हर शो का अलग एक फॉर्मेट है. अब जैसे इंडियन आइडल है फॉर एग्जांपल, इट्स एन इंटरनेशनल फॉर्मेट. या You can't really change things there. But I have not been to any of the reality shows, so I don't know the insides of it. I don't know what really happens. But जितने भी लोग reality shows में आते हैं आज, काम कर they रहे are doing concerts, they are doing recordings, they are getting even on social media they have become very massive. हाँ मतलब that's you a don't great have to be a playback singer in today's time alone. There are like zillions of ways Of to course. So many earn independent money artists and make. who are doing हाँ non-film music also. Yeah, It's a great exactly. time. It's a great हाँ. thing. कि अब और वो lines ना blur हो गई अब between film and non-film. They've like you have a Karan Aujla doing a Tauba Tauba in Bad News. Karan Aujla has always been a non-film artist, but he's doing a song for a film. और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो
पहले फिल्मों में नहीं करते थे, मगर आज फिल्म प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग सॉन्ग्स विच आर बिलोंगिंग टू नॉन फिल्म आर्टिस्ट ट्रेडिशनली, तो लाइन्स अब बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई हैं, यू नो दैट डिमार्केशन विच यूज टू हैपन कि नहीं दीज आर प्लेबैक सिंगर्स एंड दीज आर यू नो इंडिपेंडेंट सिंगर्स, वो अब बहुत सारा जो है वो इट्स बिकम वन थिंग नाउ Yeah. एंड इट्स बिकम कॉमन. तो वो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर एवरीवन. It's a great time to be doing music in today's day. So how did you land up with Tanvi and you know your solo album? तो मतलब कि कैसे, how did you get first? Let's talk about Tanvi. Tanvi the Great, it's Anupam sir की फिल्म काफ़ी साल से इस फिल्म में इन्वेस्टेड है. He's been writing it, making it, wanting to make it. तो जब वो MM कीरवानी सर को उन्होंने साइन किया फिल्म के लिए एज ए कंपोजर, he sent me a message saying कि I want you to send me some links of yours. आपके जो गाने आपने आज तक यू नो रिलीज़ किए हैं, मुझे कुछ सैम्पल्स भेजो उन गानों के, मुझे किसी को सुनाना है. सो आई डोंट नो व्हाट इट वाज फॉर. मैंने भेज दिए अपने लिंक्स. फिर सडनली उनका एक दिन फ़ोन आया कुछ महीनों बाद कि मैं किरवानी सर के साथ अभी बैठा हूँ, सो ही वांट्स टू टॉक टू यू. तो मैं एकदम चौंक गया. मैंने कहा ये क्या आपने मुझे स्पॉट पर डाल दी, बिकॉज आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ यू नो किरवानी सर एंड ही इज अ वेटरन. Yeah. So he came on the phone and he spoke very nicely and he said, "Oh, I love what I heard. What's your highest note?" So he got straight to the business, straight to the work. तो मैंने कहा सर ये मेरा highest note है. अच्छा okay. Can you sing for me? I said of course. आप बताइए. तो he sang a note, sang a tune. तो मैंने गाया. On the phone ये सब बातें हो रही है. तो मैं तब travel कर रहा था. तो उन्होंने कहा I want more open voice. I want a little more force. तो मैंने थोड़ा और ज़ोर से गाया. तो सर नहीं, आई वांट लिटिल मोर फोर्स इन योर वॉइस. ये सेम चीज़ आप गाओ, थोड़ा और ज़ोर से गाओ. तो मैंने कहा सर मैं एक्चुअली अभी एयरपोर्ट पे हूँ फिलहाल. आई एम ऑन माई वे बैक. मैं लखनऊ एयरपोर्ट की लाउंज में हूँ. मैं अभी बॉम्बे आ रहा हूँ. तो मैं यहाँ और ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो ये सारे लाफिंग. सर नहीं, नो प्रॉब्लम. आप जब घर पहुँचोगे यू जस्ट रिकॉर्ड इट इन योर वॉइस एंड यू सेंड इट टू मी. तो फिर मैंने बॉम्बे जैसे ही मैं पहुँचा उस शाम, मैंने वो एक रॉ रिकॉर्डिंग उसकी उनको भेजी. तब उस गाने में कोई वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ एक ट्यून थी. तो एक छोटा सा पार्ट था. तो मैंने वो गा के उनको ऐसी ट्यून भेजी एंड देन ही कॉल्ड मी कपल ऑफ वीक्स लेटर कि यू आर सिंगिंग दिस सॉन्ग, आई वांट यू टू कम. सो कब आ सकते हो आप हैदराबाद? तो मैंने कहा सर मैंने भी कॉल. सो देन आई वेंट टू हैदराबाद, फिक्स द डेट, वेंट फॉर द रिकॉर्डिंग एंड इट वाज मैजिकल एक्सपीरियंस. बिकॉज ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है. एंड आई थिंक to be able to sit with him in the studio, sing in front of him, उनकी गाइडेंस लेना, उनकी ब्रीफ को समझना, गाने को समझना और गाना, और फिर उनको खुश करना कि he was satisfied with the way the song turned out. So that was really special and I think it is this song सोचे आसमान is going to be one for the books for sure. So can you just hum a little bit for us? Of course. Yeah. सोचे आसमां, पूछे ये ज़मीं, कौन है बता ये जादुई परी. सोचे आसमां, पूछे ये ज़मीं, कौन है बता ये जादुई परी. Wow. Thank you so much. I hope this really goes well with people and I think it's very melodious. तो बहुत ही सूदिंग सा गाना लगा मुझे. हाँ, तो people will definitely connect. So if I have to talk about your personal kind of taste in music, जैसे रॉक, जैज हो गया या ब्लूज, तो आप वो सब भी सुनते हो? Like your personal favorite kind of genre मैं in actually music? हर जॉनर का म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ. एंड मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा. there's a lot of different styles and genres that I really like depending on the mood of the day. मतलब मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये मेरा फेवरेट जॉनर है या मैं सिर्फ ऐसा म्यूजिक सुनता हूँ. बिकॉज आई थिंक because I always wanted to be a music producer and composer also, I wanted to listen to all kinds of music. और मुझे हमेशा ये कहा गया कि आप जितना सुनोगे उतना आप सीखोगे. तो चाहे वो जैज़ हो, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो गज़ल्स हो, चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, चाहे वो हिंदी फिल्म म्यूज़िक हो, चाहे वो फंक हो, आई ट्राई एंड एक्सप्लोर
explore all genres. कुछ favorites obviously हैं, like जो जिस तरह के गाने मैं बनाता हूँ, जो मेरे independent singles रहे हैं, उसमें funk का एक बहुत element रहा है, उसमें एक Indianness जो melody की होती है वो मैं एक हमेशा रखना चाहता हूँ. comes very naturally to me, क्योंकि मैं हिंदी फिल्म के गाने सुनकर बड़ा हुआ हूँ. I've been a huge fan. तो वो जो एक combination है of that modern sound with like a traditional or like a more desi melody. I try and blend different styles and genres. So बहुत ही mixed bag है मेरे favorites का. So, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन ऐसे 5 या 6 नाम हैं, लाइक म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो या सिंगर्स हो, जिन्होंने आपको एज अ चाइल्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, लाइक यू रियली लुक्ड अप टू देम? I think the first name that I have to say is Salim Sulaiman. ओके. I've been lucky to have been working with him for the past 14 years, but before that also. उनका जो म्यूज़िक early 2000 से आना शुरू हुआ फिल्मों में, वो मेरे लिए बहुत ही I used to get really attracted to that sound. बहुत ही अलग एक साउंड वो लेकर आए थे फिल्मों में. और चाहे वो it started from काल, तो उसके जो गाने थे, नील एंड निक्की, उस दौरान की जो फिल्में थी, फिर ऑफ कोर्स आजा नचले, चक दे, बैंड बाजा बारात, कुर्बान, endless list of films. So they were really a big influence on my musicality. तो जब आप मेरे singles, जो independent singles भी आज सुनेंगे, उसमें कहीं ना कहीं उनकी एक छाप नज़र आती है. And then of course Rahman Saab was a big influence. I was expecting that name. Yeah, he's a musical genius. Genius, yeah. उनके जो soundtracks हैं, growing up, that has really influenced me in a big way. और singers में जैसे सोनू सर हैं, सोनू जी, श्रेया मैम, सुनिधि मैम, they've really been big influences. And later on, of course, Arijit he's my absolute favorite, and he's such a gem of a person also. Yeah. So to see that side of him also, apart from the music, the kind of human being he is. Yeah. It's a lot to learn. So Yeah, I try and I think the latest sensation with Ed Sheeran and with Shah Rukh Khan making the cameo, that was going gaga all over the world. Absolutely. So what do you have to think about that collab? Like, was आपको epic. लगता है it's good, it's amazing? It's epic. हाँ. It's very needed, and I think there was nobody else better than Arijit to have done that. Exactly. And I think he's a phenomenon. He's a global icon, and more power to him. He's absolutely amazing. So what can we expect from Raj in the coming 5 years? Where do you see yourself to end with? 5 years तो मैं नहीं सोचता हूँ. मैं अगले 3-4 महीने से ज़्यादा सोचता हूँ. Okay. I'm focusing on some singles that I'm working on, of my independent singles. 2-3 गानों पर मैं काम कर रहा हूँ. I've sung for a couple of movies also. एक हिंदी फिल्म के लिए और एक गुजराती फिल्म के लिए भी मैंने अभी रिसेंटली गाना गाया. So hopefully by the end of the year or early next year, these releases will happen. And yeah, just doing a lot of projects. So because we know you have also been a child actor, so any plans to come into acting too along with your singing career? Acting is it's a very serious job, and I think बहुत मुश्किल काम है करना. तो बचपन में जो वो कर लिया मस्ती मजाक में वो तो हो गया. I'm obviously interested in, I'm obviously inclined towards films and towards filmmaking and acting. But if and when an opportunity comes up, I'd like to do it very seriously and give it all my time. But and I'm very open to those opportunities. But as of now, music is the main focus. Main focus. Okay. But we would definitely like to see him trying much more different avenues and to come up with some kick-ass music in the coming time for us. And I really also have to give you a compliment that your voice, the way you sing, it somewhat reminds me of Sonu sir. Like like it has that kind of a melody. So yeah, so thank you so much and wishing you all the best for your future endeavors. Hi, मैं हूँ राज पंडित and you're watching me on punjabkesari.com.